جی سرور نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں دورہ کیا ہے اور ان کی آمد پر ان کا ایک استقبال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب ہاؤس آف کامن میں آئے تو سپیکر نے ان کی آمد کا اعلان کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا برطانیہ کی پارلیمنٹ آمد پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ گورنر پنجاب ہاؤس آف کامن میں آئے تو سپیکر نے ان کی آمد کا اعلان کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا برطانیہ کی پارلیمنٹ آمد پر پرجوش استقبال کیا۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے، اور گورنر پنجاب ہاؤس آف کامن میں آئے تو سپیکر نے ان کی آمد کا اعلان کیا۔ To the House of Commons today, the former Member of Parliament for Glasgow Central and now the Governor of the Punjab, our friend Mohammed Sarwar. Welcome, Mohammed. Order. Questions to the Prime Minister. Drew Hendry. Order. پنجاب چودھری محمد سرور برطانیہ کی پارلیمنٹ پہنچے اور ان کی آمد پر ان کا پرجوش استقبال کیا گیا، اور گورنر پنجاب ہاؤس آف کامن میں جب پہنچے ہیں تو سپیکر نے ان کی آمد کا خود اعلان کیا۔ ادھر موٹر سائیکل سوار اب ہو جائیں ہوشیار، بغیر ہیلمٹ سے چالان نہیں کٹے گا، موٹر سائیکل بھی بند ہوگی۔ بغیر ہیلمٹ پیٹرول دینے والے پمپس کو بھی سیل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس کو مراسلہ جاری کر دیا۔ اب صرف چالان نہیں ہوگا، موٹر سائیکل بھی تھانوں میں بند ہوگے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر نے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کو ایک مراسلہ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور شہر سمیت صوبے بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل کا استعمال روکے اور ایسے تمام موٹر سائیکل تھانوں میں بند کر دیے جائے جن کے سوار کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے۔ داخلہ کے جاری کردہ مراسلہ کے مطابق لاہور ٹریفک پولیس اور لاہور پولیس کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ایسے تمام پیٹرول پمپ جو ہیلمٹ کے بغیر پہننے والوں کو موٹر سائیکل کے لیے پیٹرول مہیا کر رہے ہیں، ان پیٹرول پمپ کو بھی فوری سیل کر دیا جائے۔ محکمہ داخلہ نے اس حکم پر سختی سے عمل کرنے اور اس پر پنجاب پولیس، لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس سے رپورٹ بھی مانگ لی ہے۔ سکھوں کی پگڑی ہی ہیلمٹ کا کام کرتی ہے۔ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کے ہیلمٹ پہننے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سکھ برادری کو ہیلمٹ کی پابندی سے استثناء دیا جائے، کمیونٹی نے یہ مطالبہ کر دیا۔ ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول بھی دیا جائے، سکھ کمیونٹی کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے رکن اسمبلی مہندر پال سنگھ نے کہا کہ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی پر ہیلمٹ پہننے کی پابندی نہیں۔ کے پی کے اسمبلی میں بھی اس حوالے سے قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پگڑی ہیلمٹ کا ہی کام کرتی ہے۔ حکومت سرکاری سطح پر اس پابندی کو ختم کرنے کے لیے پبلک سروس میسج چلائے۔ پیٹرول پمپس پر سکھ کمیونٹی کو پیٹرول بھی فراہم کیا جائے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ کی پابندی سے سر پر چوٹ لگنے کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہر مذہب زندگی کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی پیٹرول کی فروخت جاری ہے۔ دکانوں پر پیٹرول پمپ مشینوں کے ذریعے بغیر حفاظتی اقدامات کے پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے، جس پر انتظامیہ نے بھی چپ سادھ لی ہے۔ پچھڑا رحمان پورہ، باغڑیاں چوک، گرین ٹاؤن، امیر چوک میں دکاندار منی پیٹرول پمپس بنا کر پیٹرول فروخت کر رہے ہیں، جو کہ قواعد و ضوابط کے خلاف اور آگ لگنے کی صورت میں آگ بجھانے والے آلات کی غیر موجودگی میں لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والا کاروبار ہے۔ بعض لوگوں نے گارمنٹس کی دکان کے اندر ہی مشین لگا لی، جو کہ آگ لگنے کی صورت میں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ پیٹرول بیچنے والوں سے بات کرنے کی کوشش کریں تو کسی نہ کسی سفارشی سے فون پر بات کروا دیتے ہیں۔ متعلقہ زونز کی انتظامیہ کے ناک تلے ایسے غیر قانونی اور خطرناک کاروبار مبینہ طور پر ملی بھگت کا اشارہ دیتے ہیں۔ کیمرمین ٹیپو ملک کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 42۔ کم وقت کی کم پارکنگ فیس، کم وقت کے لیے گاڑی پارک، اتنی ہی کم پارکنگ فیس۔ کئی گھنٹے پارک رہنے والی گاڑیوں کا حل نکل آیا۔ لبرٹی پارکنگ میں گاڑیوں کی مانیٹرنگ کے لیے ای ٹکٹنگ کا آغاز۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر صالح سعید کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے پارکنگ سٹینڈز پر کرپشن معاملات اور اوور چارجنگ کے پیش نظر ای ٹکٹنگ پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ سیف سٹی اتھارٹی اور لاہور پارکنگ کمپنی کے باہمی اشتراک سے لبرٹی پارکنگ میں ای ٹکٹنگ کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید نے منصوبے کا افتتاح کیا۔
ई टिकटिंग पायलट मंसूबा इब्तदाई तौर पर लिबर्टी चौक में ऑपरेशनल किया जाएगा, जिसकी कामयाबी के बाद मंसूबे को शहर के दीगर पार्किंग स्टैंड तक भी तौसी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद का कहना था कि मंसूबे का मकसद गाड़ियों का इन आउट चेक करके रिकॉर्ड मुरतब करना और कई घंटे पार्क रहने वाली गाड़ियों से इजाफी रेवेन्यू जमा करना है। कमर्शियल एरियाज जिन पे बहुत ज़्यादा रश है और जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रेशर है, उन पे इंशाल्लाह हम ये इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि लोगों को पता हो कि हमने एक लिमिटेड टाइम तक ही अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है। दुनिया में हर जगह यही एक फार्मूला है दैट इज़ बीइंग अप्लाइड, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियली हम इसको मॉनिटर करेंगे कि हम कितने सक्सेसफुल होते हैं। सेफ सिटी और लाहौर पार्किंग कंपनी के कैमरों की मदद से गाड़ियों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ई टिकटिंग के इन आउट से पार्किंग टाइम भी नोट किया जाएगा। ई टिकटिंग के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन को बाकायदा डिवाइसेस फराहम कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जल्द ज्यादा रश वाले इलाकों में घंटों के मुताबिक रेट्स चार्ज करने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। बिलाखिर हुकूमत किसी नतीजे पर पहुंच गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन जून जुलाई तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। सीनियर वजीर ने लाहौर समेत 6 शहरों में कूड़े से बिजली पैदा करने की नवीद भी सुना दी। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी कूड़े से बिजली पैदा करने और ऑरेंज ट्रेन जून या जुलाई तक मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। कूड़े से बिजली पैदा करने के दावे तो माजी में भी किए जाते रहे हैं। अब अब्दुल अलीम खान ने लाहौर समेत 6 शहरों में कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया में कूड़े को इस्तेमाल में लाकर बिजली बनाने का काम बहुत बरसों पहले शुरू हुआ। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कई बार कूड़े से बिजली पैदा करने के दावे किए, लेकिन ये दावे महज दावे ही रहे। कई गैर मुल्की कंपनियों के साथ मिलकर ये मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया, ताहम ये बैल मुंडीर ना चढ़ सका। अब्दुल अलीम खान ने भी साबका हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए दावा कर दिया है कि लाहौर समेत 6 शहरों में कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू किए जाएंगे, लेकिन ताहाल कोई हिकमत अमली वाजिया नहीं की। फंड्स की किल्लत का शिकार हुकूमत ये मंसूबे कैसे शुरू करेगी? वेस्ट टू एनर्जी पे कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे। दूसरी जानब सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने ऑरेंज लाइन मंसूबा जून या जुलाई तक मुकम्मल करने की नवीद सुना दी है। ये मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा, इस बारे में भी कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के मुस्तकबिल का फैसला हो गया, तजावीज पेश कर दी गई। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी समेत 3 कंपनीज बंद करने की सिफारिश कर दी गई। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के मुस्तकबिल पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार की मॉनिटरिंग टीम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी। चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी PND और सेक्रेटरी सर्विसेज शामिल थे। कमेटी से कंपनियों की बंदिश पर तफसीलात तलब की गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने हतमी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात पर नजरसानी के बाद मामला हतमी फैसले के लिए सूबाई काबीना को भिजवाया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात में इब्तदाई तौर पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, पंजाब वर्किंग वीमेन एंडोमेंट फंड कंपनी, पंजाब मीट प्रोसेसिंग कंपनी को बंद का कहा गया है। दूसरी जानिब पंजाब डेयरी कॉर्पोरेशन, पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को भी बंद करने की सिफारिशात इरसाल कर दी गई हैं। ज़राए का कहना है कि नॉलेज पार्क कंपनी, साफ पानी कंपनी के मुतालिक अभी सिफारिशात तैयार की जा रही हैं, जिसका फैसला जल्द किया जाएगा। पटवारी मुंहजोर हो गए, अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। मजंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में पटवार खाने ताहाल आबाद हैं। शहरियों से इंतकाल और फर्द के नाम पर रकम बटोरने का सिलसिला जारी। DC ने नोटिस ले लिया। शहर भर के पटवार खानों के मुआयनों का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करप्शन और बद इंतजामी के पेश नज़र पटवारियों को फर्द के इजरा और इंतकाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। पटवारियों को सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग तक महदूद कर दिया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद मजंग पटवार खाने में पटवारी सखावत अब भी फर्दों का इजरा और इंतकाल कर रहा है, जबकि मजंग समेत शहर के मुतादिद पटवार खानों में काम इसी तरीके से जारी है। DC सालेहा सईद की जानिब से नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को पटवार खानों की चेकिंग की हिदायत दी गई है, जबकि फर्दों का इजरा और इंतकाल जारी रखने वाले पटवारियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं।
کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نے۔ محکمہ لیبر نے چائلڈ لیبر روکنے کے لیے گزشتہ برس 12 کروڑ ہڑپ کر لی۔ رواں برس فنڈز میں مزید اضافہ، اخراجات 20 کروڑ تک جا پہنچے۔ چائلڈ لیبر جوں کی توں، ایک بچے کو بھی چائلڈ لیبر سے نہ ہٹایا جا سکا۔ پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبہ بھر میں چائلڈ لیبر سروے کے لیے سابق دور حکومت میں جاری پروجیکٹ کو مزید توسیع دے دی۔ اب محکمہ لیبر کے افسران کو ٹاسک دیا گیا ہے گھروں میں کام کرنے والے بچوں کو تلاش کیا جائے، جس کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ اضافی طور پر منظور کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پروجیکٹ کے نام پر افسران کے لیے اضافی تنخواہیں بھی منظور کرائی گئی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں افسران نے سروے کے نام پر 11 کروڑ 87 لاکھ روپے صرف تنخواہوں کے نام پر ہڑپ کیے، جبکہ نئے مالی سال میں اب تنخواہوں میں 8 کروڑ روپے اضافے کے ساتھ اخراجات 20 کروڑ 40 لاکھ روپے ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ادارہ شماریات ہونے کے باوجود افسران نے اپنی تنخواہوں کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے پروجیکٹ میں توسیع دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پروگرام کے لیے عالمی ادارہ یونیسیف بھی حکومت کو کروڑوں روپے کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ ایل ڈی اے کی غفلت، اربوں روپے مالیت کی جائیدادیں داؤ پر لگ گئیں۔ سرکاری ہاؤسنگ اسکیم کی 50% اراضی کا انتقال تاحال ایل ڈی اے کے نام نہ ہو سکا۔ 11,000 کے قریب اراضی تاحال پرانے مالکوں کے نام ہے۔ رپورٹ میں خوش روا انکشافات سامنے آ گئے۔ 38 سال بعد بھی جوہر ٹاؤن اسکیم میں ایگزمپشن کرائی گئی اراضی کا انتقال نہ کرا سکا۔ ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے صرف 11,093 کنال اراضی کا انتقال ہی کرا سکا۔ جوہر ٹاؤن اسکیم کی 50% اراضی تاحال اصل مالکان کے نام ہے۔ سابق ڈی جی احد چیمہ نے جوہر ٹاؤن کے لیے موضوع نیاز بیگ کی 6,101 کنال اراضی کے انتقال کا کام 2015 میں شروع کرایا، تاہم 2017 میں آخری انتقال کرایا گیا، جس کے بعد انتقال کا کام روک دیا گیا۔ الکہف ایجوکیشن ٹرسٹ اور جامعہ اشرفیہ کے تعاون سے نبی آخر الزمان کے موئے مبارک کی زیارت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے موئے رسول کی زیارت کی۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت باسعادت کا اہتمام پیکو روڈ پر واقع گرینڈ شیل ہوٹل میں کیا گیا، جہاں محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطار بنائے موئے مبارک کی زیارت کرتے رہے۔ موئے مبارک کو شیشے کے ایک روشن جار میں رکھا گیا تھا، جس کے ارد گرد خوشبودار الائچیاں رکھی گئی تھیں۔ عاشقان رسول قطار بنائے شیشے کی جانب بڑھتے اور موئے مبارک کی زیارت سے آنکھوں کو روشن کرتے رہے۔ کوئی درود شریف پڑھتا، زیارت کرتا، تو کوئی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی زندگی میں پہلی بار ملنے والی بابرکت سعادت کو آنکھوں میں سموتا رہا۔ تقریب میں سرپرست الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ پیر حافظ ابراہیم نقشبندی، محتمم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم سمیت عاشقان رسول نے شرکت کی۔ کہتے ہیں آپ کو بتائیں، بڑا قیدی اور بڑے سیکیورٹی انتظامات۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیرک کے گرد و نواح مانیٹرنگ کے لیے اضافی کیمرے اور دیواروں پر برقی تاریں لگوا دی گئیں۔ سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کی اسپیشل برانچ سے رپورٹ بھی مانگ لی۔ احتساب عدالت سے سزا یافتہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سیکیورٹی کے لیے وارڈ کے اطراف میں 15 کیمرے لگا دیے گئے اور دیواروں پر 2 رویہ ننگے برقی تار بھی نصب کر دیے گئے۔ جیل ذرائع کے مطابق اس سے پہلے بھی قیدیوں کی مانیٹرنگ کے لیے 150 سے زائد کیمرے لگائے گئے ہیں، جن سے قیدیوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، لیکن نئے کیمرے میاں محمد نواز شریف کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی طور پر لگوائے گئے ہیں، تاکہ ہر قسم کی آمد و رفت سپرنٹینڈنٹ جیل خود مانیٹر کر سکیں۔ برقی تاروں کا مقصد کسی بھی صورتحال میں کوئی دوسرا قیدی سیکیورٹی وارڈ میں داخل نہ ہو سکے۔ نواز شریف کی سیکیورٹی پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور وارڈز کی خصوصی رپورٹ کے لیے اسپیشل برانچ سے رپورٹ کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے پنجاب کی صنعت، فرٹیلائزرز اور پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی معطل کر دی۔ گیس فراہمی معطل ہونے پر شہر میں بجلی بحران میں اضافے کا خدشہ ہے۔ گیس کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی پائپ لائن تباہ ہونے کی وجہ سے گیس اور بجلی کا بحران پیدا ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے، جس کے بعد پیداوار میں کمی کے باعث شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ لیسکو کے 330 سے زائد فیڈر سے بجلی کی فراہمی معطل ہے، جبکہ شارٹ فال 400 میگا واٹ ہے۔ گیس کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے پر شہری نالا ہیں، کہتے ہیں پہلے سردیوں میں گیس غائب ہوتی تھی، اب بجلی بھی نہیں آتی۔ گیس بھی نہیں آتا، پانی دا بتی دے نال کنیکشن ہے، پانی آئے گا، بتی لائٹ آئے گی تو دوسرا پانی بھی ملے گا، نہیں تو پانی بھی نہیں ملتا۔ پانی تو بالکل آتا ہی نہیں نا اس علاقے میں،
رات کے ٹائم کبھی 2 بجے 1 بجے جو لائٹ صبح کے ٹائم پہ جو بھر لے ورنہ سارا دن ایسے ہی. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے. بجلی کی بندش کے باعث گھروں میں پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا. ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان سے بنیادی سہولیات چھین لی ہیں. 3 گھنٹے بجلی جاتی ہے, لکڑوں پہ کھانا پکاتے ہیں تو نہ گیس آ رہی نہ بجلی آ رہی, مزید بڑھ گئی ہے. لوڈ شیڈنگ میں بھائی بہت اضافہ ہے, پانی بھر نہیں سکتے لوگوں کے گھروں سے. یہ جب سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی ہے نا, ہم سائے تک پانی نہیں دیتے. اس سے آگے آپ خود سوچ لیں کہ یہ حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کیا کرے گی. وزارت پاور ڈویژن کے مطابق بجلی بحران پیدا ہو سکتا ہے مگر اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیمرامین سید مراد کے ساتھ شاہ رخ ندیم, سٹی 42. ادھر شہر کے مختلف مقامات پر شہری گیس کے لیے ترس گئے. گیس بندش کے باعث خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات کا سامنا ہے. ہوٹلز مالکان بھی گیس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دیے. عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. سردی کیا بڑی, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی نازل ہو گیا. جاڑے کے دن اور گیس بندش نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. مسلم ٹاؤن, شاد باغ, بمبے جوگیا, بادامی باغ, اچرا سمیت دیگر علاقوں میں صبح اور شام کے وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی. صبح اور شام کے اوقات میں گیس نہ ہونے سے خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات درپیش ہے. گیس کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے نا, صبح میں شام میں بہت تنگی ہے گیس کی. گھر میں اب 2-3 مریض ہیں, کوئی ہیٹر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سردی کی وجہ سے بہت مسئلہ ہے. اسکول جانا ہوتا ہے تو گیس بالکل بھی نہیں ہوتی. ناشتہ کرنے سے رہے ہوتے ہیں, نہ ناشتہ کر کے جاتے ہیں, گیس نہیں ہوتی اور سب ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی جب رات کے ٹائم, صبح اور شام کے ٹائم پہ گیس نہیں ہوتی. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے. ہوٹلز مالکان لکڑی اور سلنڈر کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں. سخت سردی میں نمازوں کے اوقات میں گیس بندش سے نمازیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سردی کا موسم ہے اور گیس جو ہے وہ بالکل نہیں آتی, تو وہ یہاں یہ صورتحال بن گئی ہے کہ نمازی جو ہے وہ آپس میں پھر گتھم گتھا ہوتے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ اس بارے میں تکرار کرتے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عوامی مسائل حل کرنے پر توجہ دے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے. کیمرامین شہزاد کے ساتھ عثمان خان, سٹی 42. ٹاؤن شپ کے تاجروں اور رہائشیوں کا سوئی گیس کی گزشتہ 3 ماہ سے قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. خواتین اور بچوں نے بھی مظاہرے میں شرکت کی اور محکمہ سوئی گیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ٹاؤن شپ کے بلاک 14 میں سوئی گیس کی قلت کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں ٹاؤن شپ کے تاجروں اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 ماہ سے علاقے میں گیس کی قلت کا سامنا ہے جس کے باعث شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں. متعدد بار شکایات کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ گیس کی قلت کے باعث وہ مہنگے داموں لکڑیاں اور LPG جلانے پر مجبور ہیں. مظاہرین نے کہا کہ گیس آتی نہیں لیکن بل آ جاتے ہیں اور اگر فوری مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ کے دفتر کے سامنے دھرنا دیں گے اور احتجاج کریں گے. ادھر فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے. 5 گرائنڈنگ یونٹ سیل کر دیے گئے. 10,000 کلو ملاوٹی مرچ, ہلدی اور مسالہ جات ضبط کر لیے گئے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاہور اور قصور کے نواحی علاقوں میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں کر کے 5 گرائنڈنگ یونٹس کو سیل کر دیا. اس موقع پر فوڈ ٹیموں نے 10,000 کلو ملاوٹی مرچ, ہلدی اور مسالہ جات بھی ضبط کر لیے. سیل کیے جانے والے یونٹس میں رفیق مرچ, ظہور مرچ چکی, جاوید مرچ چکی, التقوی اور یحییٰ گرائنڈنگ یونٹس شامل تھے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق فنگس لگی ثابت مرچ کو پیس کر سرخ مرچ پاؤڈر تیار کیا جا رہا تھا. رخ کریں گے گجر پورہ کا, جہاں پر شہریوں نے LDA کے جعلی کمرشل انسپیکٹر کو رشوت لیتے پکڑ لیا. شاہد حمید DG LDA کا نام استعمال کر کے گجر پورہ میں غیر قانونی تعمیرات کرواتا تھا. LDA کا جعلی کمرشل انسپیکٹر بن کر گجر پورہ میں رشوت لیتے ہوئے شاہد حمید نامی جعل ساز کو شہریوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. شاہد حمید DG LDA کا نام استعمال کر کے گجر پورہ میں جعلی انسپیکٹر بن کر غیر قانونی تعمیرات کراتا تھا. شہریوں نے رشوت لیتے ہوئے موبائل ویڈیو بھی بنا لی. شاہد حمید نے LDA کا جعلی انسپیکٹر ہونے کا اعتراف بھی کر لیا. شاہد حمید DG LDA آمنہ عمران کا نام استعمال کر کے شہریوں کو لوٹتا تھا. شہریوں نے شاہد حمید کو مزید کارروائی کے لیے گجر پورہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور اب شہر میں قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانیے اس رپورٹ میں.
इकबाल जोन इंतजामिया का मांगा रोड और सुंदर रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावजात कायम करने पर 17 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, मुतादिद दुकानें सील। LDA का बगैर नक्शा तामीर और कमर्शलाइजेशन की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन। PIA रोड, बाबरा टाउन और रायविंड रोड पर मुतादिद इमारतें मिसमार कर दी गयी। जिला इंतजामिया का मौजा भाई कोट और ठोकर न्याज बेग पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। 3 करोड़ मालियत की 11 कनाल अराजी वागुजार करा ली गई। निश्तर और गुलबर्ग जोन इंतजामिया का ग्रीन टाउन में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। 6 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। शहर में होने वाले जुराइम की कार्रवाइयों और मुख्तलिफ मुकदमात में होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस के लिए एक और इम्तिहान। शहर में साइकिल चोर ग्रुप बे मुतहरिक। द पीस स्कूल शमा चौक की पार्किंग से चोर साइकिल चुराकर फरार हो गए। थाना निश्तर की हदूद में चोर सुपर स्टोर से चंदे का गल्ला ही चुराकर फरार हो गया। वाकये की CCTV फुटेज मिल गई मगर चोर न पकड़ा जा सका। सब्ज़ार पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। भारी मिकदार में शराब और नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। डॉल्फिन एहलकारों ने गाजियाबाद से मोबाइल स्नैचर पकड़ लिया। दाऊद नामी मुल्जिम को मोबाइल ट्रैक होने पर गिरफ्तार किया गया। गड़ी शाहू से 55 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। SP सदर का थाना रायविंड और थाना चौंक का अचानक दौरा। थाना और हवालात की सफाई समेत मुख्तलिफ मामलात को चेक किया। बरकी पुलिस और CIA कैंट की फुर्तियां। नाबालिग बच्चे को डकैती का मुर्तकिब ठहरा दिया। दादरसी के लिए बच्चे की वालिदा सेशन कोर्ट पहुंच गई। मुतासरा खातून ने 16 साल हसनैन को बाजियाब कराने का मुतालबा किया। खावन ने मार पीट कर घर से निकाल दिया और बच्चे छीन लिए। नवाब टाउन की रिहायशी नसीम बीबी खावन से बच्चे बाजियाब कराने के लिए सेशन अदालत पहुंच गई। स्पेशल जज कस्टम्स लाहौर खाकान बाबर ने बैरून मुल्क से स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स, कैमरा पेन और दीगर चीजें गैर कानूनी तरीके से एयरपोर्ट से निकलवाने के केस में मुलव्विस दानियाल कस्टम एजेंसी के मालिक अवैस अमजद खान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुल्जिम अदालत से फरार हो गया। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने पाक अरब सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर मेजर रिटायर गुलाम मुर्तजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। जबकि IG ऑफिस में स्टेनोग्राफर भर्ती केस में नैब को अहमद हसन का 19 जनवरी तक रिमांड दे दिया। पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों के बाइकॉट के बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने सहाफ़ी के साथ की जाने वाली बदतमीजी पर मुआफ़ी मांग ली। सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो अपोजिशन ने भी भरपूर साथ दिया। वज़ीर इत्तलात की जानिब से गुज़िश्ता रोज सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देने के बजाय बदतमीजी के वाक़े पर सहाफ़ियों ने पंजाब असम्बली के इजलास की कवरेज का बाइकॉट कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने फयाजुल हसन चौहान की जानिब से सहाफ़ी के साथ बदतमीजी पर माज़रत की। चौहान साहब चूँकि अभी नौजवान हैं और मेरे ख्याल में अभी उनमें वो गर्म खून है जिसकी वजह से उन्होंने शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट किया। लेकिन मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारे अपने सहाफ़ी भाइयों से जो है वो माजरत चाहता हूँ। अपोजिशन अरकान असेंबली ने भी सहाफ़ियों का साथ देते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात के खिलाफ नारेबाजी की। अंदाजा लगाइए इनकी डिक्टेटरशिप का, जो खुद को आज जमहूरी कहते हैं, कि सब सवाल भी ये चाहते हैं इनकी मर्जी का पूछा जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि उनकी अहलिया की तबीयत नासाज थी और वो परेशान थे। उन्होंने भी सहाफ़ियों से माजरत की। उस मौका मुनासिबत से वो गलत सवाल था, मैं टेंशन में था, मैंने उस तरीके से जवाब दे दिया। अगर किसी को बुरा लगा वेरी सॉरी। अपोजिशन अरकान का कहना था कि वज़ीर इत्तलात का रवैया हर एक के साथ गैर मुनासिब है जिसकी मजम्मत करते हैं। लाहौर बार में 12 जनवरी को होने वाले इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। सदारती उम्मीदवार चौधरी अवैस काजी ने हाई कोर्ट बार का दौरा किया। वकला से राब्तों में बार की फलाह बहबूद के लिए खिदमत सर अंजाम देने के अज़्म का इजहार भी किया। लाहौर बार का सालाना इंतखाब 12 जनवरी को हो रहा है। लाहौर बार के सदारती उम्मीदवार चौधरी अवैस काजी एडवोकेट भी स्पोर्टर्स वकला के हमरा इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में राबते कर रहे हैं। चौधरी अवैस काजी का कहना है कि वो कामयाब होकर सीनियर और जूनियर वकला के लिए फलाही इक़दाम करेंगे। मेरे 2 पॉइंट्स पे खास फोकस है। एक तो है कि मेरी ख्वाहिश है कि हम जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं उनका वजीफ़ा लगाऊँ मैं, और जो हमारे न्यूली इनरोल्ड होते हैं यंगस्टर उनका भी फॉर द टाइम बीइंग 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैं उनके लिए भी वजीफे का बंदोबस्त करूं, ताकि वो अपने जो प्रोफेशन है उसमें इंटेग्रिटी के साथ जो है ना वो शामिल हो सके। सदारती उम्मीदवार अवैस अहमद काजी ने स्पोर्टर्स वकला के हमरा इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हाई कोर्ट बार का दौरा किया। उनका कहना था कि प्रोफेशनल वकील ही वकला के मसाइल को जानता है और उसे हल कर सकता है। एक प्रोफेशनल बंदा ही जो है वो
अपने प्रोफेशनल भाइयों के लिए बेहतर तौर पे सोच सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरे ग्रुप के साथ साथ मेरे उस्ताद मियां इसरार साहब की मुझे हिमायत हासिल है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने भाइयों के लिए इंतहाई इक़दाम करूँगा, उनके लिए उनकी बेटरमेंट के लिए। तमाम उम्मीदवार कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं, ताहम इसका फैसला वोटर्स वोकला इलेक्शन के रोज अपना हक के राय दही इस्तेमाल करके करेंगे कि वो अपनी क़यादत का हक किसको देते हैं। कैमरामैन जामिर अब्बास के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। आपको बताएं कि होम इकोनॉमिक्स का मजमून ना सिर्फ घरेलू उमूर बल्कि तख्लीकी सलाहियतों को भी जिला बख्शता है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा होम इकोनॉमिक्स की तालिबात ने डेकोरेशन और अमूर खानादारी पर मबनी शानदार प्रोजेक्ट्स तैयार करके नुमाइश के लिए पेश किया। दीवारों पर सजे ये फन पारे मशरकी, इस्लामी और हिंदुस्तान की क्लासिकल आर्ट की अक्कास हैं। लाहौर कॉलेज की तालिबात ने घर की खूबसूरत सजावट, रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल करके आम अशिया को भी दिलफरेब बना दिया। तालिबात ने सिर्फ सजावट ही नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत को मद्देनजर रखकर हल्के फुल्के खाने भी तैयार किए। फूड के रिलेटेड जो है ये सैंडविच बनाए हैं, सिर्फ इतना नहीं कि ये सैंडविचेज हैं, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है उससे भी लोगों को पता चले कि फूड एंड न्यूट्रिशन भी एक फील्ड है। वाइस चांसलर डॉक्टर फरखंदा मंजूर, शोबा होम इकोनॉमिक्स की चेयरपर्सन यास्मीन मुदस्सर ने असातिज़ा के हमराह तालिबात के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। यास्मीन मुदस्सर कहती हैं कि होम इकोनॉमिक्स अमूर खानादारी निभाने की साइंस है और यूनिवर्सिटी में तलबा को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि ये सब सिखाया जाता है। आर्ट्स के लोग हैं, साइंस के लोग हैं, उनको जो है ये ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि बगैर किसी डिप्लोमे के वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। लाहौर कॉलेज की तालिबात की तैयार करदा ये प्रोजेक्ट्स उनकी असाइनमेंट का हिस्सा हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तैयारी में तालिबात ने 3000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक खर्च किए हैं। कैमरामैन अदील चीमा के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वजीर कानून राजा बशारत की कॉल रिकॉर्ड करने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हो गई। बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी के MS के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज करने पर इत्तफाक किया, जबकि वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का इल्जाम साबित होने तक MS के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। असेंबली में गुज़श्ता 3 सालों में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों की तफसीलात भी पेश की गई। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 32 मिनट की ताखीर से पैनल ऑफ चेयरमैन मियां मोहम्मद शफी की जेर सदारत शुरू हुआ। असेंबली में डॉक्टर अरीबा अब्बासी के तबादले के मामले पर सूबाई वजीर प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन ने बेनजीर भुट्टो अस्पताल के MS के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि राजा बिशारत ने कोई नाजायज बात नहीं की थी, MS फोन रिकॉर्ड करने का आदी है। एक साइबर क्राइम किया उस डॉक्टर ने, वो साइबर क्राइम का उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए। एक मिनिस्टर का या MPA का, वो किसी हल्का नियाबत से भी हो, उसने काम जिसको वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से अब एक जायज काम समझता है, उसने उसको परसू करना उस वक्त तक जब तक वो होता नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रुकन वारिस किल्लू का कहना था कि वजीर कानून का फोन रिकॉर्ड करने वाले SMS के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो वह तहरीक चलाएंगे। जो MS है उसको हाउ ही डेयर कि उसने वो पूरी टेप की, वो राजा साहब की गुफ्तगू टेप की और वो टेप करके वो मीडिया पर चलवाई, और मैं इस सिलसिले में ये शदीद एहतजाज करता हूँ। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सरकारी मुलाजिम को अहकामात मानना पड़ते हैं, MS के खिलाफ इल्जाम साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रुकने असम्बली उज़मा बुखारी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को तनकीद का निशाना बनाया। इशू का कोई हल सामने आना चाहिए था। क्या उस MS के खिलाफ इंक्वायरी हुई? क्या उस MS ने जो कुछ किया सर इस्तीफा दे दिया गया? ये हल नहीं है। पंजाब असम्बली के ऐवान में बताया गया कि गुज़श्ता 3 सालों में से 3,92,841 अफराद ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया, जबकि फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले मुलाजमीन के पेशा वराना तहफ़्फ़ुज़ सेहत बिल को स्टैंडिंग कमेटियों के क़याम तक मौखर कर दिया गया। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कज़ाफ़ी भट्ट, सिटी 42। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का 48वां इजलास हुआ। अपना घर हाउसिंग प्रोग्राम फॉर्म की कीमत 250 रुपए मुकर्रर करने और दरख्वास्तों की स्क्रूटनी मुतल्लिका इजला की डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कमेटियों से कराने का फैसला किया गया।
फाटा बोर्ड का 48वां इजलास सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट चौबुर्जी में मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग हसन इकबाल, डीजी फाटा ज़ियाउद्दीन सती, दीगर फाटा मेंबरान, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तशहीर और फाटा की इस्तेदाद कार में इजाफे के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि मंसूबे से मुतालिक तमाम मकामी और कौमी अखबारात और टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात दिए जाएंगे। मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। दरखास्तों की स्क्रूटनी मुतालिका इजला के डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कमेटियों के जरिए की जाएगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद का कहना था कि घरों की अलॉटमेंट बजरिया कुरान अंदाजी होगी। मंसूबे का PC1 तैयारी के आखिरी मराहिल में है। इजलास में फैसला किया गया है कि दरख्वास्त कुनिंदा 250 रुपए में फार्म हासिल कर सकेगा। इजलास में फाटा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की जामिया अल मुंतज़िर आमद। प्रिंसिपल हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफी से मुलाकात में इस्लाम और तालीम के मैदान में जामिया अल मुंतज़िर की खिदमात को सराहा। मॉडल टाउन एच ब्लॉक में वाक़े जामिया अल मुंतज़िर आमद के मौके पर सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान के हमरा पार्टी रहनुमा अजासम शरीफ भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने जामिया अल मुंतज़िर के प्रिंसिपल हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफी से मुलाकात की। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन मुस्तकिल न होने पर सरापा एहतजाज हैं। नासिर बाग था चेयर क्रॉस एहतजाज रैली निकाली। तफसीलात जानिए उस्मान अलीम की रिपोर्ट में। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए नासिर बाग ता चेयरिंग क्रॉस एहतजाजी रैली निकाली। रैली में पंजाब भर से आए मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके हुकूमत और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का कहना है कि उनको फिलफोर मुस्तकिल किया जाए, मेडिकल अलाउंस दिया जाए और बिला जवाज तनख्वाहों में कटौती बंद की जाए। ना तो रेगुलराइज किया जा रहा है, ना हमें सर्विस स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। हम जब रोना रो रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें तो डेली वेजेस वाले मुलाजमीन से भी हमारे साथ बदतर सलूक किया जा रहा है। पंजाब का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया, उसके बाद भी आज तक 10 सालों से हमें किसी ने नहीं पूछा कि हमारे बुनियादी हकूक हमें मिले भी हैं कि नहीं मिले। चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिया तो सूबाई वजीर माल मलिक मोहम्मद अनवर ने मौके पर पहुंचकर मुतालिबात तस्लीम करवाने की यकीन दहानी करवाई। और अब तिजारती सरगर्मियों से जुड़ी खबरों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। चाइना के सफीर याओ जेंग की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आमद। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर ने इस्तकबाल किया। दौरे में पाक चीन तिजारती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेंबर इदारों में अफरादी कुव्वत पूरी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। एम्प्लॉयमेंट पोर्टल लाहौर चैम्बर और rosie.pk के बाहमी इश्तराक से बनाया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंजुमन ताजरान लाहौर के ज़रिए तमाम शहर की मार्केटों के ताजरों का इजलास में ज़िले हुकूमत की जानिब से मार्केटों की सफाई सुथराई के मसाइल, तजावुज़ात समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। शहर में होने वाली अहम खबरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नर हाउस आमद। कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर तय पा गया। दोनों अतराफ ने क़यादत से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। पंजाब असेंबली में कैबिनेट कमेटी बराए शुगर सेक्टर का इजलास। गन्ने के काश्तकारों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए हुकूमती एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से मीटिंग। कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने हफ्तावार खुली कचहरी में बुजुर्ग पेंशनर्स की शिकायत सुनी, जिन्होंने पेंशन ब्रांच के एहलकारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जेंग का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। याओ जेंग का कहना है कि चीन में पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के हसूल के लिए स्कॉलरशिप्स फराहम कर रहे हैं। MD LWMC फर्रुख क़य्यूम भट्ट और GM ऑपरेशन सुहेल अनवर मलिक की सरबराही में महकमे के तमाम ऑपरेशनल स्टाफ और जोनल अफसरान के साथ हंगामी इजलास। सफाई की अबतर सूरत हाल का जायजा लिया गया। फ्रांसीसी मालियाती और तरक्याती इदारे AFD के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की MD वासा से मुलाकात। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया। गुलबर्ग में सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जफर इकबाल शेख की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से बात की गई। वाइस चेयरमैन UC 207 की ज़ेर सदारत अंजुमन ताजरान मॉडल टाउन C ब्लॉक का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सैयद कलीमुर रहमान की सालगिरह का केक भी काटा गया। अब आपको बताएं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल हुसैन नकवी के भाई सैयद नजमुल हसन नकवी की रस्म कुल जामिया अतुल मुंतज़िर मॉडल टाउन में हुई।
अजीज़ व अकारब, सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने पर मरहूम के इहसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी और मजलिस अज़ा हुई, जबकि हाफ़िज़ सैयद रियाज हुसैन ने दुआए मग़फ़िरत फरमाई। खुदाया तुझे अपनी इज़्ज़त और जलालत का वास्ता सैयद साहब मरहूम पर अपनी रहमत वासिआ का साया फरमा। खुदाया तुझे अपनी रहमत और जलालत का वास्ता सैयद साहब मरहूम को फिरदौस बरीन में जगह अता फरमा। सैयद नजमुल हुसैन नकवी की रस्म कुल में चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी, सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान, रहनुमा तहरीक इंसाफ आजासिम शरीफ, रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, अहमद परवेज मलिक, रुकने सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर, गजाली सलीम भट्ट, फैसल खोखर, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, तलहा बरकी, सीनियर सियासतदान सोहेल ज़ियाब भट्ट, उमर सोहेल ज़ियाब भट्ट, हाफिज अमीर अली अमान, शेख अलियास अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, शेख नोरेज, ग्रुप लीडर एबटमा गोहर इजाज, कर्नल टैड अमजद गिलानी, SSP अली नासिर रिजवी, बिलाल अकबर खान, साद अकबर खान, एहसन अकबर खान, सद्दाम मतर खान, सीनियर साहबी इफ्तिखार अहमद, नजम वली खान, GM सिकंदर, शेख जावेद, सुबहान अहमद तरीन, इरफान गुराया, चौधरी ताहिर, खलीफा हुसैन मेहदी, मियाँ ताहिर, खुरम कलीम, नवीद चौधरी, जाहिद चौधरी, आमिर रजा खान, सादत मेहदी और आगा हैदर समेत मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, ताहम धुंध में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। महकमे मौसमियात ने जुमे के रोज से बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसम की सूरत हाल के बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा हसन खालिद से। हसन खालिद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर शहर के मौसम की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है और रात डलते ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अलबत्ता आज धुंध में काफ़ी हद तक जो है वो कमी वाक़या हुई है। रात के औकात में बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के करीब जो धुंध पड़ने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने ये भी पेशेंगोई की है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों के इम्कानात भी हैं। जुमे के रोज़ से बारिशों का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू होगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा और दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए शहरी जो है वो अपने गर्म ठीक है हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ सनतकार हाफिज आबिद अली की जानिब से उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन मलिक अदील एहसान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शरीक वकला की जानिब से इलेक्शन में हिमायत की यकीन दहानी करवाई। अब एक नजर सिटी राउंड अप पर। बुज़दार हुकूमत ने बलोचिस्तान के नौजवानों को बरसर रोजगार बनाने के लिए साबिक दौरे हुकूमत में दी जाने वाली माली इमदाद रोक दी। उधर वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की रहाइश गाहों के बाहर सड़कों की तज़ीन और आराइश के लिए 10 करोड़ की इजाफी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर्स अशिया की कीमतों को चेक करने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दें। महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुस्तकली के लिए शराइत आयद कर दी। सिर्फ उन असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा जिनकी कारकर्दगी अच्छी होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से महकमा आर्काइव को आर्काइव बुक तैयार करने की हिदायत। महकमा आर्काइव ने तैयारी शुरू कर दी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया। अब गैर कानूनी शिकार करने पर 5 साल कैद और 2 लाख जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सजाओं में इजाफे की तजवीज दे दी गई। FBI ने कौमी इंजीनियरिंग के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 53,47,000 रुपए की रिकवरी कर ली। कवि इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इनकम टैक्स बकायाजात कीमत में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की नादहिंदा थी। कायम मकाम IG पंजाब ने DSPs और इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट पर एतराजात सामने आने पर असर नौ जायजा लेने के लिए 6 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। मारूफ ढोल प्लेयर अरिश्मा खान की 22वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ढोल प्लेयर अरिश्मा की सालगिरह की तकरीब में उनके करीबी अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों और फनकारों ने शिरकत की। इस मौके पर गुलकार अली नवाज, बाबर सुल्तान ने भी परफॉर्म किया। गुलकारा हुमैरा अरशद ने भी अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाया। अरिश्मा ने दोस्तों के साथ अपनी सालगिरह का केक काटा और कहा कि वो सालगिरह तकरीब का इनेकाद करके खुश हैं। हर साल मैं बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। हर साल सिटी 42 बहुत अच्छे तरीके से ऑनर करते हैं। थैंक यू। अरिश्मा ने जहां तकरीब में शिरकत करने पर सभी का शुक्रिया अदा किया, वहीं उनका कहना था कि ऐसी तकारीब से सब एक जगह मिल बैठते हैं और गिले शिकवे दूर होते हैं। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।